Good morning students and welcome to the class. As we have started our chapter in English literature, chapter number 8, chips. We have done the hard words and words meaning and read the chapter also. Now it's the time for summary. Let's see first who is the writer. The writer of this chapter, chips, is Dale Scott Lawrick. Dale Scott Lawrick has written this chapter, Chips. Before starting the summary of this chapter, as we have read the chapter and what we see, the main 2 points in this chapter, that whenever there is a story which is related to the war, mostly the stories on war usually focus on, they are focusing only on the suffering and destructions. Stories on war usually focus on suffering and destruction, but this chapter, Chips, however, has a happy ending. So now we will start the summary of this chapter number 8, Chips. Once upon a time, in a faraway country, there lived a small family. As the country was at war, so there were very little food for its people. क्योंकि वहाँ पे वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, इसलिए वहाँ के जो लोग थे उनके लिए फूड बहुत ही कम था और वहीं पर ही एक स्मॉल एंड पुअर फैमिली रहती थी. वंस इन अर्ली मॉर्निंग समवन नॉक देयर डोर, किसी ने उनका गेट नॉक किया. एंड व्हेन द मदर ओपन द डोर, जो मदर ने डोर ओपन किया, 2 फॉरेन सोल्जर्स वर देयर एंड दे वर सेइंग, make some chips for us. The black-haired soldier said to mother to make the chips for them and said that we will come at 12 noon for the lunch, and they went from there. Mother closed the door and she was so worried as she moved inside. She cried, "Chips! How are we going to make chips? I have never heard this name." मैंने तो कभी ये नाम ही नहीं सुना चिप्स, तो मैं इन सोल्जर्स के लिए चिप्स वाली रेसिपी डिश कैसे बनाऊं? Then the younger child said, one of the children said, "First please open this sack." पहले आप इस सैक को ओपन कीजिए, हम देखेंगे इसमें है क्या जिससे कि चिप्स बनती है. So the mother opened the sack, and in that sack there were the potatoes. And since the beginning of the war they have not seen so many potatoes. उन्होंने जब से वॉर स्टार्ट हुआ है इतने पोटैटोज तो देखे ही नहीं थे. So the grandmother said, "Don't be silly, we know very well how to cook potatoes." हमें अच्छे से पता है पोटैटो कैसे बनाते हैं. फर्स्ट पील दैम एंड बॉयल दैम फॉर द सोल्जर्स. हम इसे पील करेंगे और चॉप करके सोल्जर्स के लिए बनाएंगे. मे बी दे यूज़ द वर्ड चिप्स फॉर दिस. ग्रैंडमा सेड, हो सकता है वो इसे ही चिप्स कहते हों. सो स्टार्ट मेकिंग. The grandma gave the work to all the children for washing and peeling, and then they chopped the potato and put them in a cooking pot, and they poured it water and potatoes. ग्रैंडमा ने बोला, सिली क्यों हो रहे हो, हमें मालूम है कि पोटैटो कैसे बनाते हैं. तो ग्रैंडमा ने सभी बच्चों को पील करने के लिए और वॉश करने के लिए पोटैटो दिए, और जब वो सब पोटैटोज चॉप्ड हो गए तो उन्हें कुकिंग पॉट में इन द फायर प्लेस रख दिया. बट व्हेन इट वॉज कुकिंग एज दे वर सिटिंग देयर, जैसे कि सब उसके चारों तरफ बैठे थे, द यंगर चाइल्ड सेड,
that why they were making so big fuss for these boiled potatoes, कि वो इन boiled potatoes के लिए इतना एक्साइट कैसे हो सकते हैं. और then the elder ones were worried. ये सुनकर जो घर में बड़े हैं वो सच में वरी हो गए कि हो ना हो चिप्स और कुछ होता है, बॉइल्ड पोटैटो को नहीं कहते होंगे, और अगर उन्हें वो डिश पसंद नहीं आई तो वो सोल्जर हमारे साथ क्या करेंगे. So they added some herbs, berries and mushroom to make it more delicious. उसे और डिलीशियस और टेस्टी बनाने के लिए उन लोग ग्रैंड माँ ने और मदर ने उसमें हर्ब्स, बेरीज और मशरूम भी ऐड कर दिए. At 12 noon, the soldiers came and knocked at the door. The mother opened the door and make them sit on the table chair. और मदर ने उनको चेयर पे बिठा दिया. The fair-haired soldier, और वो सोल्जर जिसके फेयर हेयर थे उसने कुछ क्या निकाले, राई ब्रेड के चंक्स निकाले और उसे प्लेट पे रखे, और उसमें से कुछ चंक्स उसने ब्लैक हेयर्ड सोल्जर को भी दे दिए. After then, mother started to serving them in a bowl. She ladled the potato broth into their bowls. और जैसे ही मदर ने उनके बाउल्स में लैडल करके वो पोटैटो सूप डाला, डेट स्ट्यू डाला, दे वर इन डिसबिलीफ. उन्हें विश्वास नहीं हुआ डेट दिस वॉट शी इज सर्विंग टू दैम, कि वो उन्हें क्या सर्व कर रही है. सो एंग्रीली दे सेड, वॉट इज़ दिस, वी हैव आस्क्ड यू फॉर द चिप्स. ये क्या बनाया है, हमने तो आपको चिप्स बनाने के लिए कहा था. द मदर सेड, दिस इज़ हाउ वी कुक चिप्स, हम तो चिप्स ऐसे ही बनाते हैं. देन द वाइट हेयर्ड सोल्जर सेड, जस्ट कीप क्वाइट टू द ब्लैक हेयर. जो वाइट हेयर सोल्जर था उसने ब्लैक हेयर सोल्जर को चुप किया और कहा, आई एम हंग्री एंड आई हैव टू टेस्ट दिस, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, चलो हम इसे ही टेस्ट करते हैं. एज सून एज ही जस्ट टुक द फर्स्ट सिप ऑफ दैट सूप, he promptly spat out the potatoes all over the table. और जैसे ही उसने एक स्पून टेस्ट किया उसने अपने मुंह से पूरा वो पोटैटो और सूप है उसे स्पैट आउट कर दिया, थ्रो कर दिया अपने मुंह से, जो कि then he shouted, what is this swill, ये क्या है, and he just changed enough angry face, and then he stand up and hoisted his rifle. और जैसे उसने खड़े होकर अपनी राइफल, जो उसकी राइफल है, उसे स्ट्रेट किया शोल्डर से अपनी गन को, फैमिली वॉज इन अ फियर एंड दे कवर्ड, मीन्स वो दुबक गए सब घर वाले, और मदर भी 2 स्टेप पीछे हो गई डर के. बट एज दे स्टैंड अप एंड दे सेड, लेट्स लीव पीपल हेयर डोंट इवन नो हाउ टू कुक चिप्स. हाँ, आफ्टर देन क्या बोला वाइट हेयर्ड सोल्जर ने, चलो यहाँ से अब चलते हैं, यहाँ के लोगों को तो ये तक नहीं पता कि चिप्स कैसे बनाते हैं. देन दे स्टैंड एंड मूव फ्रॉम देयर, और वहाँ से चले गए. एंड व्हेन द फैमिली वॉज कन्फर्म दैट दे हैड गॉन, देन द चिल्ड्रन दे जस्ट एडेड मोर दैट पोटैटो पील्स एंड मोर हर्ब्स. उनके जाने के बाद उस स्ट्यू में उन लोगों ने पोटैटो पिल्स और हर्ब्स भी डाल दी है उसे और डिलीशियस बनाने के लिए. आफ्टर देन विद द चंक्स ऑफ द राई ब्रेड ऑफ द सोल्जर्स जो राई ब्रेड के चंक्स लाए थे, उनके साथ पूरी फैमिली ने उस स्ट्यू को एंजॉय किया, मीन्स टेस्ट किया, खाया. एंड इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल स्ट्यू दैट दे हैड एवर टेस्टेड. और ये उनकी लाइफ का सबसे अच्छा स्ट्यू था जो उन्होंने आज तक टेस्ट किया था. This was the summary of this chapter. I hope all of you understand this chapter. Now it's turn to do the question answer. Thank you, students.